I've also realized that when you are authentic, when you have nothing to hide, you lead a much easier life. There is such a push कि इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको लगेगा कि हर आदमी की परफेक्ट शादी है. ट्विटर पर लगेगा कि हर आदमी पोर्टफोलियो में पैसा कमाता है. एंड रियलिटी इट इज नॉट लाइक दैट. And I think we need to have realistic conversations in life and in offices. Yeah. वेलकम टू मनी टॉक, एक ऐसी सीरीज जहां मैं गेस्ट को अपने चैनल पे बुलाता हूं और उनके साथ बातें करता हूं कि उनके पैसे के साथ रिश्ता कैसे है और कैसे वो चेंज हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ दिस लाइफ. आज के एपिसोड में मेरी गेस्ट हैं राधिका गुप्ता, जो कि इंडिया की वन ऑफ द यंगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल सीईओज हैं. एट द एज ऑफ 32 she became the CEO of Edelweiss Asset Management and आज 39 की एज पर वो एक बहुत बड़ी कंपनी चला रही हैं सक्सेसफुली, इमेंसली, एडमिरेबली. एंड उनकी किताब लिमिटलेस अभी अभी रिलीज हुई है, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी उन्होंने जद्दोजहद झेली, देखी और उससे सीखा, वो सब हम सबके साथ शेयर किया है. इस कॉन्वर्सेशन में राधिका अपने पैसे के साथ कैसे डील करती हैं, अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करती हैं, कैसे अपने पैसे के साथ का जो रिश्ता है वो बदला है फॉर हर थ्रू हर लाइफ, सब जानेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. Thank you so much, Radhika, for joining me. It's such a pleasure to have you, especially at a moment where your book Limitless is rocking the charts, and for the right reasons. We will speak about the book as well, but I wanted to spend time with you today trying to understand your relationship with money. You would have had a personal relationship with money. You're also a professional who manages money, not just of yours, but of millions of other people. So my first question to you is, growing up, and that too in a family which is a diplomat family, you're traveling across continents, so on. What were your early impressions of money, and how did you think about money in general? This is a really interesting question. And, one I must tell you, Ankur, not many people know about diplomats. So people assume, especially on social media, etc., that I come from a very privileged background, right? Whenever I have talked about struggles or anything, they're like, oh, it's a privileged diplomatic background. And I don't deny, my father worked for the government. The one thing I realized growing up, Ankur, is that money is deeply relative. Nobody is rich or poor in absolute. You're rich or poor in relative. And I'll give you an example. So my early years, till I was, I think, 10 or 11, we were in Delhi and Pakistan. Now, Pakistan, I was obviously too young to remember anything of consequence. But in Delhi, I was going to Delhi public school. Most people know what that's like. And everyone felt the same. My father worked in government. Some people's fathers were professional. This was the 90s. So, people didn't really have big corporate jobs, etc. So I was very neutral about money. When I moved to Nigeria, I went to an American school. And I've said this in my talks, but everyone else was suddenly much richer than me. I call this, I refer to the school as student of the year of today, back in the 90s, right? And so then I became very conscious about money for the first time. I realized there's a difference between people. There's a difference between what my classmates wear and I wear. The number of times they could go on vacation, the number of times I could go on vacation. And my mother was not poor in absolute. So, this is not a rich kid struggle, but money is deeply relative. That was one of my first actual learnings about money. And then I think my second profound one was in Italy, which is when I was applying abroad for college. And this is a story I tell in the book, where suddenly my counselor, because you're applying abroad and clearly we could not afford full fees at that time. I think a US college education was about 1 crore then. That is not happening. So the first time I started realizing that your choices can be constricted by money. Even though you're very good, you might have to make different trade-offs. So that was my first set of relationships with money. And that has obviously, of course, evolved over the years. Wonderful. Yeah. Now, it's so true.
it's very very hard to compare one's money with another, because at the end of it लोगों की इच्छाएं, उनकी desires, उनकी ज़रूरतें are just so vastly different कि किसी के लिए लाखों रुपए भी कम पड़ जाते हैं और किसी के लिए हजारों रुपए भी काफी होते हैं, and it just becomes a conversation that you don't even know, like what is rich is something that you never know. But एक सवाल जो मैं अक्सर पूछता हूँ कि ग्रोइंग अप ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों के पास अरमान होता है कि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे और किसी दिन मैं ये करूंगी और ये करूंगा और वो सब होंगे. ग्रोइंग अप, डिड यू आल्सो हैव लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ नंबर इन योर माइंड कि जिंदगी में अगर इतना पैसा आ जाए तो बस लाइफ सेट है? नहीं, ऐसा नंबर नहीं था, लेकिन मैं बोलती थी, मेरी मम्मी कहती है कि मैं बोलती थी दैट बड़े होके मैं रिच एंड फेमस बनना चाहती हूँ. तो अभी मुझे वो रिच का मतलब क्या है, फेमस का मतलब क्या है, ये कुछ समझ नहीं आता था. लेकिन जब लोग पूछते थे ना कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहोगे, आई डिडंट रियली हैव अ पैशन और हॉबी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इंजीनियर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहती थी मैं रिच और फेमस बनना चाहती हूँ. और ये शायद हमें सिखाया जाता है, so that is that. So I don't have a number growing up. हमारे यहाँ हमको एक्चुअली, क्योंकि पापा सरकार में थे, कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत कम था, तो उनका वर्ल्ड था पब्लिक सेक्टर और बाकी दुनिया थी प्राइवेट सेक्टर. उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंशिएशन नहीं था. इनफैक्ट जो आपको बताना चाहिए, जब मुझे अपनी पहली इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में मिली, तो मेरे पापा को he heard कि I was earning $5,000 a month, कुछ इंटर्नशिप का पैसा था. That was probably more than he was earning at the peak of his career as a diplomat. I know, I so relate to that. जब मैं यूएस गया था राधिका अपने पीएचडी के लिए, वहाँ स्टाइपेंड मिलती है बाकी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एज अ फॉर्म ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप. तो मुझे $1,500 उस समय पे महीना मिलती थी, which was far more than my dad ever earned in his life per month. And suddenly as a student मुझे कोई वो पैसे दे रहा था पढ़ने के लिए. तो it was a wild time, and I can so relate to what you're saying. And do you remember your first job, Radhika? What was it? I'll tell you my first job. It was, तो मैं फाइनेंशियल एड पे कॉलेज में पढ़ी थी, तो मैंने बहुत सारे कैंपस जॉब्स किए थे ऐसे टाइम, थोड़ा सा खर्चा के लिए, बिकॉज हर चीज बहुत महंगी होती थी कैंपस में. किताबें भी $200-300 की होती थी, एंड बाइंग हर चीज बहुत महंगी होती थी. तो फर्स्ट आई वाज अ लैब असिस्टेंट इन द कंप्यूटर लैब, तो मैं थोड़ा सा हेल्प करती थी. देन सेकेंड ईयर में, क्योंकि थोड़ी ठीक ठाक स्टूडेंट थी, मैं टीचिंग असिस्टेंट बन गई. उसमें मुझे $15 पर आवर मिलते थे, आवरली वेज होती थी, विच वॉज अ लॉट ऑफ मनी 10 घंटे के लिए. तो इट वॉज एक्चुअली क्वाइट अ बिट ऑफ मनी. और मेरी पहली असली नौकरी माइक्रोसॉफ्ट में थी, जो मैंने सेकेंड ईयर में की थी. नाइस, ऑसम. एंड आपने अपनी पहली सैलरी, चाहे वो लैब असिस्टेंट वाली थी या टीए वाली थी या माइक्रोसॉफ्ट वाली थी, व्हाट डिड यू डू विद योर फर्स्ट इनकम? आई टेल यू, मैंने अपने पहले कुछ सैलरीज तो खर्चा पानी में लगा दी. एंड दिस इज प्रॉब्ली अ मिस्टेक, क्योंकि लोन पे पढ़ते थे, तो ये सब था. तो माय फादर यूज्ड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द एजुकेशन, और थोड़ा लोन पे था, एंड आई वांटेड कि द अमाउंट ही वाज पेइंग एवरी ईयर गॉट लेस. बट आई शुड टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच आई आल्सो कवर इन द बुक. द फर्स्ट लग्जरी परचेज हमको आई डिड, वो मैंने किया था McKinsey में और वॉल स्ट्रीट में नौकरी पाने के बाद 2005 एंड 6 में. बिकॉज बाय देन कॉलेज का बर्डन चला गया था, थोड़ी एक सी फ्रीडम आ गई थी. खर्चा भी आप तब कर सकते हो. आई थिंक यू कैन एंजॉय मनी व्हेन यू आर थोड़ा सा मेंटली फ्री. तो वो मैंने परचेज 2006 में की थी. क्या वो लुई विटॉन का बैगवती वाला एक्सपीरियंस है? हाँ, वो लुई विटॉन का बैगवती वाला एक्सपीरियंस है. I loved that story. Please मेरे ऑडियंस को वो स्टोरी बताइए. हाँ, तो आपको बताती हूँ. तो 2006 की बात है, 1 साल से काम कर रही थी और किसी फ्रेंड को लंच पे मिलने गई थी. तो मैंने $10 का लेदर का बैग कैरी कर रखा था. वो मुझे देख के कहती है, तो वॉल स्ट्रीट पे काम करती है, वर्किंग ऑन वॉल स्ट्रीट, व्हाट आर यू कैरिंग? I felt quite good about my $10 bag, because I am a little bit of a cheapo at heart even today. And I said, what should I do? She said, you should go to Louis Vuitton and buy a handbag. And I had never heard any of this before, but my pride was insulted. I think money का ना pride से भी बहुत ताल्लुक होता है. So after that lunch, literally वो lunch खत्म हुआ, वो लड़की चली गई, मुझे याद है, और मैं लुई विटॉन के शोरूम में गई. एंड मैंने कोई लुई विटॉन बैग नहीं खरीदा, मैंने सबसे महंगा लुई विटॉन बैग खरीदा.
इट्स नॉट कि मैंने सादा सा लुई विटॉन बैग, इट वाज कॉल्ड एन एपी लेदर वन, $1400 का मैं निकल के, और वो बैग ऐसा था कि उस बैग को रखने के लिए एक बैग आता था, जैसे आपको पता है महंगे हैंड बैग्स होते हैं, एंड आई वॉकड आउट विद दैट ब्लैक बैग, वेरी पावरफुल। और आई थिंक टाइम बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैंने लुई विटॉन खरीदा, उन्हें समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे उसको कॉस्ट बताने की वो हुई, और मेरी पूरी नॉर्थ इंडिया की फैमिली को, एंड ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, एवरीवन न्यू अबाउट द कॉस्ट ऑफ द बैग। एंड यू नो व्हेन आई वुड गो होम, मैं दिल्ली जाती थी ट्रैवल करने या लोगों से मिलने, तो कहते थे अच्छा वो $1400 वाला बैग, उसे छुओ मत, उसे देखो मत। True Bhagwati experience. True Bhagwati. Oh my God, were you able to tell the actual price to your mother? क्योंकि वो काफी commendable चीज है अगर आपने वो करी है। मैंने बताया, थोड़े वक्त के बाद बताया, एंड देन माय मदर विद ग्रेट प्राइड उन्होंने सबको बताया, ऑस्ट्रेलिया में फूफी को बताया, मौसी को बताया, और उस बैग की बहुत सेवा होती थी। एट सम पॉइंट माय हस्बैंड यूज्ड टू जोक दैट आई विश आई वाज दैट बैग, क्योंकि उसकी जितनी अच्छी ट्रीटमेंट होती है तो शायद मेरी भी। Do you still have that bag? I still have that bag. I tweeted that bag. It's sitting there. I tried to let my mother use it once, Ankur. I said, "आप तो मैं बोर हो गई हूँ, आप रख लो." She said, "मेरे से ये यूज नहीं होता." होगा ही नहीं। I remember ये मेरे साथ हुआ था जब थोड़े से पैसे जिंदगी में आने शुरू हुए थे, और हमेशा से ये था कि नाइकी के जूते खरीदने हैं, क्योंकि those are the best athletic shoes. तो मैंने अपने लिए नाइकी के जूते खरीदे, और फिर जब खरीदे तो माँ पापा ने पूछा कितने के हैं, तो मैंने सबसे सस्ते वाले खरीदे थे, क्योंकि उतने समय उतनी औकात थी, तो $1000 के थे वो। दैट इटसेल्फ वाज बिग, क्योंकि तब तक तो बाटा के 100-150 रुपए के ही जूते आते थे। एंड आई रिमेंबर एक दिन मैंने ये प्रपोज किया अपने डैड को कि आप रोज वॉक पे जाते हैं, तो आप नाइकी के जूते क्यों नहीं खरीद लेते? और उनका इंस्टेंट रिएक्शन यही था कि $1000 के जूते मैं कभी पहन नहीं पाऊंगा, सिर्फ सर पे रख के ही चल पाऊंगा। तो आई थिंक हिंदुस्तानी माँ बाप को गिफ्ट करना इज द हार्डेस्ट चैलेंज। इट्स फार इजियर टू build an asset management company running millions of dollars of assets under management than trying to gift your parents and them being gracious about it. क्योंकि वो एक बहुत इंडिया में पैदा हुए थे यार अंकुर, वो ना मेरे पापा कहते हैं वो, और ही इज वेरी गुड एट दिस ग्लोबल स्टेटमेंट्स, वो एक इंडिया में पैदा हुए थे जहाँ स्कार्सिटी दिखी थी ना, छोटी छोटी चीजों के लिए छोटी छोटी इच्छाएं दबा के पैदा हुए थे। हम फिर भी एक अबंडेंट इंडिया में पैदा हुए हैं, हमसे आगे वाली जनरेशन तो ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट, बट बहुत अलग थे। तो आई एग्री, इट्स वेरी हार्ड टू गिव देम अ फैंसी वॉच, और I mean, what I have gifted my parents on their 25th anniversary, which was my first gift to them, they still have kept that stuff. Wow. And that just so true parents, and wonderfully so. When did you ever get to a point, Radhika, जहां आपको लगा कि अब जिंदगी में काफी पैसा आ चुका है, अब पैसे के लिए शायद काम करने की जरूरत नहीं है? You know, I'm answering this question right before my bonuses and increments. So, yes, ka jawab, I hope this video releases after that. I think I have had a very funny relation. Abhi, I'm at that point when I'm very financially comfortable. I'll tell you, I had मेरा थोड़ा सा ग्राफ अजीब रहा है, because मैंने वॉल स्ट्रीट पे बहुत पैसे कमाए थे 2005 से 8 की 9 की उसमें, लेकिन उसके बाद मैं इंडिया आ गई और एंटरप्रेन्योर बनी। एंड ये मैंने थोड़ा किताब में भी बताया, बट दैट फेज ना, आई वेंट फ्रॉम हियर मनी टू हियर मनी। आई लिटरली अंकुर वेंट टू लिविंग इन अ 1 bedroom house that we could not invite anybody to because it was so damn small. And remember, मैंने जो आपसे बात में, money is relative. मेरे जो सारे क्लासमेट्स थे वॉटन के, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे थे, और जब बाहर यूएस में रहते थे ना, हम सब एक जैसे होते थे, सब सबवे लेते थे, सब वही जगह खाना खाते थे, ऑल दैट। जब मैं इंडिया आई ना, तो मुझे बहुत एहसास हुआ कि एक बहुत इनकम, सो दैट एंटरप्रेन्योर थिंग, और मैंने उसमें पर्सनल फाइनेंस की भी मिस्टेक्स बहुत की थी, यू नो, इन माय 2005 to 10 phase. So I had that phase. Then of course we sold the company, and you know, now I have been working as CEO. So now things are comfortable. Now I feel I'm at a point where money matters, but I would not change a job just because someone's paying me more money. There are other things that matter far more. और चीजें बहुत मायने रखती हैं. It's not कि मुझे
ठीक पैसे नहीं चाहिए, मुझे फेयरली नहीं पे करा जाए, वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के कारण मैं कोई स्टेप नहीं। That's so true. I so relate to that as well. Wonderful. And you reference to personal finance. काफी गलतियां करी 2005-2010 के बीच में, डिस्पाइट अर्निंग सो मच. उन गलतियों के बारे में थोड़ा बताएंगे राधिका? हाँ, आई थिंक मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में मुझे लगता है गलतियां करना सब होता ही है, उसमें कोई आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। तो मैंने क्या किया, मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया 2006-7 में, और सारा पैसा इक्विटी में डाल दिया, और वो बहुत अच्छा टाइम था अगर किसी को याद है, 6 साल। और मैंने सोचा, किसी ने मुझे ये एडवाइस दी कि तुम तो यंग हो, बहुत लंबा करियर है, सब जाके इक्विटी में डाल, ओके। एंड फिर 2008 आया, सबको पता है 2008 में क्या हुआ। द थिंग दैट इज यूनिक हमारे प्रोफेशन में अंकुर, इज ये नेचुरली बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन है। सी, इन अ गुड ईयर एवरीथिंग इज गुड, इन अ बैड ईयर, इन एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड का एनएवी कम होता है, आपके बोनस कम होते हैं, आपको स्टॉक में कॉम्पनसेशन मिलती है, वो स्टॉक प्राइस गिरता है, उसको आप डबल कर दीजिए। बिकॉज माई हस्बैंड वॉज इन द सेम सिचुएशन, ही वर्कड फॉर गोल्डमैन सैक्स, इफ माई हस्बैंड वॉज अ डॉक्टर, perhaps this would be very different. So suddenly our portfolio is down 50%. And this is a middle class person who had just saved. और फिर क्या हुआ, 2009 में हमने इंडिया आने का फैसला किया, and we had to redeem all that money. वो सारा पैसा निकालना पड़ा at lower, not very high valuations. So that has been my biggest personal finance learning of my life. कि एक तो लोगों की ये बातें नहीं सुननी चाहिए कि आप 25 साल के हो तो सारा, ये कोई रूल नहीं होते। आपके लिए जो ठीक है वो आपके लिए ठीक है। आई थिंक लाइक 2 वेरी हाई रिस्क प्रोफेशनल्स, उनकी डिसीजन मेकिंग, और 2 और 25 साल के डॉक्टर लोग जिनकी लाइफ मार्केट से लिंक नहीं है, उनकी लाइफ अलग है। और दूसरा, मैंने कुछ सीखा कि अलग अलग चीजें होती हैं, इक्विटी होता है, डेट होता है, ये सारी चीजें आप कॉलेज में सीखते हो। मैं फाइनेंस स्टूडेंट थी, आई फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते ना, एक्चुअल सीख नहीं आती। बिल्कुल, इट्स सो ट्रू। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जहां आपको कोई जितना भी सिखा दे, आप गलतियों के बारे में कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि गलतियां खुद से कर कर ही आप सीखते हैं। एंड आई सो अग्री विद दैट। मुझे भी याद है, सो आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिजनेस स्कूल इन 2006, दैट जस्ट पीक, लाइक पागलपन चल रहा था। There were jobs left, right and center, money being thrown, markets gone crazy. तो everyone thought अब तो कुछ नहीं खराब होने वाला है. And then within 2 years, everything was just crashing like it had never before. One thing this profession has taught me is balance. I always say, don't let a bull market get to your head, don't let a bear market get to your heart. अपनी टीम को भी मैं ये समझाती रहती हूँ कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दुखी होने की जरूरत। और इंडिया में क्या है, हम लोग थोड़ा सा, वो हमारे यूपी में कहावत है, या तो रेल में या जेल में, वेरी एक्सट्रीम, वी आर वेरी एक्सट्रीम एंड इमोशनल पीपल। सो द बेस्ट थिंग दिस इंडस्ट्री हैज टॉट मी इज कि थोड़ा बैलेंस रख के लाइफ चलो। Absolutely. तो I'm curious, how do you invest your money today? Okay. So सबसे पहले तो मैं बहुत साधारण चीजें करती हूँ, which लोगों को शायद दे गेट सरप्राइज। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करती हूँ, मोस्ट ऑफ इट इज इन म्यूचुअल फंड्स। मैं डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे डालती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, और आई रियली लाइक म्यूचुअल फंड्स, आई जस्ट थिंक इट वर्क्स फॉर मी। मेरा ज्यादातर पैसा एक कंजर्वेटिव फंड में जाता है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। उसका जिक्र मैंने किसी और उसमें लिमिटलेस में भी किया है, बट इट्स अ फंड दैट हैज सम इक्विटी, सम डेट। सो for my profession, for my personal life, given my husband's profession, ये बहुत सही है। और फिर थोड़ा सा पैसा मैं इंटरनेशनली यूएस, चाइना जैसे मार्केट्स डालती हूँ, थोड़ा सा मिड कैप, स्मॉल कैप में। बट ये है, मैं SIP के जरिए इन्वेस्ट करती हूँ अंकुर, क्योंकि मैं सैलरी हूँ, तो मुझे हर महीने सैलरी आती है, और हमारी पोस्ट टैक्स सेविंग्स में से हम लोग टारगेट करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, और हम SIP हमने आज तक कोई कैंसिल नहीं की। That is, we are a real believer. I think the simplicity of this is just powerful, क्योंकि once you start witnessing the compounding effect of this over long term, very few things can beat the power of this. So बहुत बढ़िया. I think this is just a wonderful message, and you are being true to your own profession and also true to the simplicity of how investing works. I'm curious to know, राधिका, कि आपका क्रिप्टो की तरफ कोई विचार
सबसे पहले तो मुझे बहुत ट्रोल किया जाता है मेरे क्रिप्टो की तरफ विचारों के ऊपर, और मुझे लगता है इस शो के बाद मुझे बहुत ट्रोल करा जाएगा। लेकिन मैं क्रिप्टो में निवेश नहीं करती। आई नो लोगों के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन मुझे क्वाइट फ्रैंकली क्रिप्टो समझ नहीं आता, और मैं उन्हीं चीजों में निवेश करती हूँ जो मुझे समझ आती है और जहां मुझे पूरी रेगुलेटरी क्लैरिटी हो। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बट मुझे समझ नहीं आता। इट्स जस्ट लाइक मैं प्राइमरी घर के अलावा रियल एस्टेट में निवेश नहीं करती, मुझे समझ ही नहीं आता। सो आई लाइक टू डू वेरी सिंपल थिंग्स। मुझे लगता है अंकुर की जिंदगी इतनी वैसे स्ट्रेसफुल है, मुझे पैसे के कारण स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। दैट इज वन प्रिंसिपल ओवर द लास्ट 3। मैं बहुत कॉलीग्स देखती हूँ, हमारा प्रोफेशन वैसे ही इतना डिमांडिंग है, लोगों का पैसा मैनेज करना इतना डिमांडिंग है, जब मार्केट गिरता है तो इतने लोग, मीडिया सब आपके पीछे आता है। द लास्ट थिंग यू वांट इज कि आपका पर्सनल पैसा आपको स्ट्रेस करे, और ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत होता है। तो आई ट्राई टू कीप माई लाइफ वेरी वेरी सिंपल। It's so powerful what you just said. मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद चली जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट का फायदा ही क्या है? मतलब आपको डर लगा रहेगा कि कभी सरकार ना इसको बैन कर दे, कहीं पैसा ना डूब जाए, कहीं कुछ हड़प ना ले। इट्स यूजलेस, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट ये पैसा आप अपने खुशी के लिए और अपने मानसिक संतुलन के लिए ही बना रहे हैं। एंड अगर वही चला जाएगा, देन नो इन्वेस्टमेंट विल एवर बी वर्थ इट। मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा आप किसी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं बनाने के, अंकुर को राधिका से ज्यादा कमाना है और राधिका को किसी, आप खुशी देने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, फॉर बेटर लाइफ, फॉर गोल्स, फॉर ऑल ऑफ दैट कमाते हैं। तो whatever gives you, and there's no judgment, right? Someone else does crypto, it is okay, but you have to do what works for your personality, I feel. Absolutely, so true, so true. इन सारी चीजों में राधिका, मेरा एक सवाल आपसे कि what part of your success, and you undoubtedly have had a wonderful, like I am so impressed by the fact कि आपने at the age of 39, like you're so young, you still have a wonderful life ahead of you. You have achieved pinnacles that people wouldn't even get in their lifetime, and all of that has not been easy. आपकी किताब पढ़ के it was very evident that you've had a life which has taught you a lot of hard lessons along the way. What part of your life's success आप luck को attribute करेंगे, or something which you can't really explain and thus have categorized as शायद luck था? I think life is a combination of chance and choice, and all of it comes together. मुझे लगता है किसी को कोई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपको जिंदगी मौके देती रहती है, आप उन मौकों का बेस्ट फायदा उठाइए। तो थोड़ा सा लक है, थोड़ा सा मेहनत है, और थोड़ा सा वो पुराना, शायद if you read my book, कि मैं थोड़ी सी फिल्मी भी हूँ लाइफ में, बट थोड़ा सा वो पुराना शाहरुख खान का डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि जर्रे जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की। सो आई ऑल्सो थिंक थोड़ी सी जिंदगी, यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक यू सक्सीड, एंड दैट इज, आई थिंक, माय बिलीफ इन लक. Yeah, no, it's wonderfully put, and I remember reading this in your book Limitless, jahan you were describing your experience after UPenn, jahan aapko back to back rejections mili thi, and suddenly you were in McKinsey, which is the place to be for consulting firms, and as luck would have it, the person opposite to you was interested in bridge, which was something that you also used to follow. And according to what you narrated of that experience, aapka pura interview almost a conversation on a card game tha, without any discussion ki what do you do, what grades do you have, and all of that. And I found that fascinating. So many cases. I sold my business to a company called Edelweiss. They didn't have a large mutual fund business. One day they wanted a mutual fund business. They couldn't get a CEO. मैं आ गई, तो मुझे I think 32 की उम्र में CEO का मौका मिल गया. Is this luck? ऐसे तो बहुत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं. बहुत सारे. I want to go to one episode 2018 में that you've mentioned, where Captain Raghu was taking this storytelling exercise workshop, and that is where your brilliant talk, Girl with the Broken Neck, was recorded.
And you've shared, which I didn't know of. मुझे ऐसा लगता था कि ये story आपने पहले share करी है, but it seems that was the first time you publicly shared your insecurities, your difficulties, your apprehensions of being who you are. And I would love for you to share audience के साथ कि how did that change you? Because I'm certain it has changed you in so many ways. एक तो experience और एक sharing of that experience, which is just so vivid. Oh, it has been definitive, and my parents say this. लोगों को शायद जो अब लोग मुझे जानते हैं उनको शायद यकीन नहीं होगा मेरे में आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन. मैं बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. मैं ऐसी थी. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन मैं लोगों से बात करने से घबराती थी. आपको लिमिटलेस में कहानियां मिलेंगी, तो मैं ऐसी थी. मैं अपने लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस थी. मुझे 30 साल की उम्र तक फोटो खिंचवाने में घबराहट होती थी. दैट इज हाउ आई वाज. आई वाज कन्विंस्ड आई वाज अगली. That is just how I was, and many people have this story. And I did this talk. I had so little confidence that I did this talk because I trusted Captain Raghu. मैंने अपने husband को भी नहीं बताया, अपने parents को भी नहीं कि मैं talk देने वाली. And they didn't know this story in completion. Like मेरे husband को parts पता है, मेरे parents को थोड़ा parts पता है. When they saw it, उनको भी shock हो गया. ये talk के होने के बाद मुझे I think लोग कहते हैं बहुत पब्लिक फायदा हो. सबसे ज्यादा फायदा मुझे जो हुआ है ना, अंदरूनी इंटरनल फायदा हुआ है. बिकॉज आई यूज्ड टू लेट गो द बैगेज. आई वाज रिलैक्स्ड. आई वाज लाइक जो हूँ जैसी हूँ अच्छी हूँ. अभी मुझे किसी ने ट्रोल किया किसी भी बात पे, आई कैन टेक ऑन द ट्रोल. मुझे डर नहीं लगता. तो एक कॉन्फिडेंस, एक फियरलेसनेस जो चाइल्डहुड में थी ना, वो वापस आ गई है. I even say this book is a book about finding self-confidence because my journey is a journey of finding self-confidence. So I think अपने flaws को admit करना, खुले दिल से बात करना. I've seen that in your talks also. You don't do it for anyone. You do it for yourself. Exactly. It's almost like I love one thing that you said, which was I wasn't speaking to anybody. I was actually speaking to my own self. And the best speakers I know of, and I've heard you speak live as well, are very rarely speaking to somebody. Like वो genuinely अपने आप से बात कर रहे होते हैं. There just happens to be an audience in front of them, और वो level of connection फिर कहीं और नहीं मिल पाता. And I love this one quote that you have written in the book, which is authenticity travels farther than we estimate and stays with people longer than we imagine. मैं इतना बड़ा फैन हूँ ऑथेंटिसिटी का, बिकॉज आई फील इस दुनिया में अब इतने सारे फेक पर्सोनाज लोग डालते हैं, फेक आइडेंटिटीज डालते हैं, एंड देन दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ ट्राइंग टू लिव दैट आइडेंटिटी, दैट इफ यू आर जस्ट ट्रूली योरसेल्फ, देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट और इस इंसान के सामने मैं कैसा था, मैंने क्या बोला था, मुझे याद करना पड़ेगा, ये कैसे बिहेव करना है. वैसे यू आर जस्ट योर ओन सेल्फ. एंड the little that I've known you from a distance, your content that you share on LinkedIn, on Twitter, the talks that you engage, I've always found consistency in there. Like it's almost like I know, and this is happening live as well, you're not a different person ever. And that just feels so wonderful. Did authenticity come naturally to you, Radhika, or is it something that you had to work on? Did the talk change that about you? Talk us through that. It totally changed after the talk. मैं उस environment में पैदा हुई थी जहां मुझे बताया गया था, मेरे पापा सरकार में थे, और डिप्लोमेटिक हाउसहोल्ड एक बहुत फॉर्मल हाउसहोल्ड होता है. और मेरा इंप्रेशन था कि जब आप एक लीडर होते हो, आप CEO होते हो, आप कमरे में बंद कॉर्नर ऑफिस में बड़े डिस्टेंट होते हो लोगों से, आप अपने बारे में बात नहीं करते हो. ये टॉक ने सब कुछ बदल दिया. बिकॉज इट्स मैं आपको एक बात बताती हूँ. आफ्टर द टॉक जब कैंडिडेट्स मुझे मिलने आते थे, प्रोस्पेक्टिव इंटरव्यू कैंडिडेट्स, दे डोंट नो मी फ्रॉम राइट, वो अपनी कहानियां मुझे पहले इंटरव्यू में बताते थे. बिकॉज somehow they felt कि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ. मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं और कॉल्स करती हैं, एंड their questions are not about their career. The most common question I get when I talk to a young girl is, what kind of person should I marry? Wow. And I mean, it tells you what women are thinking about, ambitious women are thinking. But that is the strange connection people feel to you without
knowing you. And as I said, I've also realized that when you are authentic, when you have nothing to hide, you lead a much easier life. You genuinely जो आप और आज के जमाने में ये आपको तो सोशल मीडिया की मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी है, बट देयर इज सच अ पुश कि इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको लगेगा कि हर आदमी की परफेक्ट शादी है, ट्विटर पे लगेगा कि हर आदमी पोर्टफोलियो में पैसा कमाता है, फेसबुक पे लगेगा कि हर आदमी की परफेक्ट छुट्टी है. दिस इज एक्चुअली द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, एंड reality it is not like that. Every day I have conversations where I tell members it is okay to have a bad day. It is okay to not like your boss. I actually tell people, do you think everyone loves their boss every day? ऐसा नहीं है. So, I think that has helped. And I think we need to have realistic conversations in life and in offices. Yeah. That is so true. That is so, so true. Life इतनी आसान हो जाएगी ना अगर आप किसी भी रूप का पहनावा दिखावा करना बंद कर देंगे, because you're just who you are. Awesome. One last question before we end, Radhika. मेरे जो ज्यादातर ऑडियंस है वो 18 से 24 साल के हैं. They have rarely had any formal training around money. It is something that they recognize is important for life. उनके लिए 2-3 tips from your own experience, not just as someone who has managed her own money, but is now managing millions of other people and of course their own. I think it's hard to put it into tips, but I would say a few things. Ankur, एक तो सेव करना शुरू करिए. ये एक बहुत कंज्यूमरिस्ट जमाना है, तो सेव करना शुरू करिए, लेकिन जरूर खर्चा भी करिए. तो मैं 80-20 का रूल अप्लाई करती हूँ. 80% सेव करिए, लेकिन मैंने भी लुई वुइटन बैग खरीदा था, तो मनी शुड ऑल्सो बी एंजॉयड. सो फाइंड दैट बैलेंस ऑफ सेविंग एंड स्पेंडिंग. और दूसरा, और आप जैसे लोग बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे के बारे में सीखिए. ये टिप्स और रैंडमली उसके बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए. सीखिए, समझिए, उसके बाद निवेश करिए. देन मेक मिस्टेक्स, इवॉल्व एटसेट्रा, बट बी इन्फॉर्म्ड. बी एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. डोंट जस्ट डू समथिंग बिकॉज यू हर्ड इट. I think that's brilliant advice, because beyond the technicals की कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, ये जो 2 लार्जर प्रिंसिपल हैं कि सबसे पहले तो पूरी शिद्दत के साथ आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है. लाइक दैट हैज टू बी अ डिसिप्लिन, एंड डू इट इन अ मैनर जहां आप पैसे को समझते हैं. लाइक हाउ डज इट वर्क फॉर यू. आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं. जब एंड आई लव व्हाट यू सेड, जब पिछले 2 साल यही हुआ है, मार्केट बढ़ रही थी, सब खुश थे. अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, ये देखो बेस्ट है. अब हिलने लगी है, सब डर रहे हैं. अगला 1-2 साल पता नहीं, शायद बहुत मुश्किल होने वाला है, तो बहुत डर और समाएगा. एंड दैट इज एक्चुअली व्हेन मोस्ट पीपल मेक द बेस्ट रिटर्न्स, व्हेन markets are down and under representative of the value that they have. And उस पॉइंट पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स अंदर घुसते हैं एंड नॉट सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाहर निकलते हैं. डोंट मेक दैट मिस्टेक. नॉट सजेस्टिंग दैट आप टाइम करें मार्केट को, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क एपिटाइट कैसे ओवर अ लॉन्ग टर्म प्ले आउट करता है. वंडरफुल. Thank you so much, Radhika. Thank you for the book. I absolutely loved it. I would recommend this to every single person, particularly people in their 20s, क्योंकि इस किताब में इतना कुछ है जो आप अपनी अर्ली जिंदगी में अगर जान पाएंगे from the experience and mistakes and learnings that Radhika has made and gone through in her life, you will only thank her and bless her, because this is like literally for the cost of a pizza, somebody's wonderful life hand delivered to you in a manner that you will never get otherwise. Thank you for writing this book. Thank you for sharing your story. Thank you for being out there despite such a hectic, demanding profession you have. I am a big fan and I wish you absolutely the best for everything you do. Thank you, Ankur, and all the same goes to you. You're doing an amazing job with finance content and life content. So it was just a delight to do this. Thank you so much. All the best, Radhika. Bye-bye. Thank you. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिस पे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं. नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.